और स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो गई स्टार्ट? यस सर, हो गया। Yes, sir. नाउ फर्स्टली BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले। BCD बच्चे, BCD जो कोड होता है बाइनरी कोड डेसिमल, इट शुड बी चूजिंग योर 4 बिट कोड। ऑलरेडी हमने BCD कोड पढ़े हुए हैं, सबके क्लियर? तो उसमें Yes, हमारे sir. BCD के पास इनपुट कितनी होती हैं? 4 इनपुट, 4 बिट BCD कोड। So I have to write the 4 bit, that is the B0, B1, B2 and B3. So we should have to write for the decimal purpose. If I am right decimal here, board is visible to all of you? Two. Now this is the right from the up to decimal line. If I am write the BCD code here, one here, now listen बच्चे, okay. If you are all seeing the scientific calculator, or in the case of your LED display, it should be display like in this way. See, my board is visible to all of you? Yes, sir. बच्चे बोर्ड Sir. विजिबल है सबको कि नहीं? Yes, sir. हेलो हेलो एवरीवन, Visible Yes, है। sir. या Yes, sir. ठीक है बच्चे, ये देखो, दिस इज योर, आई हैव टू ड्रॉ सम डायग्राम फॉर द 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 segment display, I have to write each and every coding for that display, A, B, C, D, E, F, G. Okay, so I have to want to decoder BCD to 7 decimal 7 segment display or decoder. So now if I am right, if you I am display 0 at this level, अगर मैं यहाँ पे अपने कैलकुलेटर पे, जैसे ये मेरा साइंटिफिक कैलकुलेटर में LED पे डिस्प्ले होता है 7 सेगमेंट, if I am display 0 at this age, hello students, if I am display 0 on this screen, so in that case which alphabet is missing now? Tell. G. G. If I am display decimal 0, then in that diagram we have to missing G, means A is 1, B is 1, C 1, D, E, F, G is now 0. Yes, sir. Okay, if I am display 1 here, then what happen? 1 is display in this way, means B and C is now 1, all other are 0. right. I am writing the truth table to making the truth table of the BCD to 7 segment display. All of you understand this? If I am display 2, then what is the value of this A, B, C, D, E, F, G? Tell. 1101 001. Now see this one, all of having the clear, but I am write 1 and 0 in that case. Yes, sir. मीन्स जो से आपके इस अल्फाबेट में डिजिट आएंगे वो वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी वाला अल्फाबेटिकल वो आपका 0 हो जाएगा। सिमिलरली इफ यू आर डिस्प्लेइंग 8 इन दैट, अगर आप यहाँ पर 8 को डिस्प्ले करना चाहोगे तो 8 पे वैल्यू क्या आएगी? ऑल अल्फाबेट शुड बी नाउ 1। ऐसा ही होगा बच्चे? टेल यस और नो।
This truth table is clear to all of you with I am the LED display like 7 segment display. Sir, excuse me. So as per according you have to put up the value of 3 here. 3 की Sir? वैल्यू क्या आएगी? सर एक बार दोबारा समझा दो, कुछ समझ सारा नहीं आ बच्चे मैं रहा। दिखा दो हूं. I have to Sir, excuse me. या टेल सर E1 नहीं आएगा 2 के केस में? किस पे? सर 2 के केस में E1 नहीं आएगा? वेट. या बताओ बच्चे अब क्या कह रहे हो? सर 2 के केस में E1 नहीं आएगा? बताओ. सर 2 के केस में E1 नहीं आएगा? इसमें 2 के केस में? एक बार दोबारा समझ लो बच्चे. I have to go through once again. I have to describe the topic that is related with the decoder in which we have to do the decoder BCD to 7 segment display decoder. Okay, means यहाँ पे आपने 7 segment को display करवाना है according to the decoder purpose. 7 segment मैंने यहाँ पे बना दिया है with the help of the 7 alphabet A B C D E F G. Okay, so according to this one, this is a decimal number. I have the right. This is a decimal. डेसिमल 0 से लेकर 9 तक मैंने डिस्प्ले करवा दिया है. बीसीडी कोड 9 तक मैंने 4 बिट का बीसीडी कोड राइट अप कर दिया है. देन आई हैव टू राइट द डिस्प्ले ऑफ द 0 1 से लेकर 0 से लेकर 9 को हमने डिस्प्ले करवाना है. उसके अकॉर्डिंग जो मेरी आउटपुट है दैट शुड बी इन टर्म ऑफ दिस वे A B C D E F G. ओके, इफ आई एम डिस्प्ले 0 इन द केस ऑफ दिस LCD, तब 0 के केस में मेरा G डिस्प्ले नहीं होगा. G की वैल्यू नहीं होगी ना 0 डिस्प्ले करने के लिए. तो इन केस दैट केस 0 is now G, बाकी सभी ABCD की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. ओके, इफ आई एम डिस्प्ले 1, अगर मैं 1 को डिस्प्ले कर रहा हूं तो 1 के केस में मेरा B और C एक्टिव रहेगा. मींस B और C एक्टिव रहेगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे 0. इन केस ऑफ 2 के केस में मेरा क्या होगा F और C वो एक्टिव रहेगा, इनएक्टिव रहेगा. 2 के केस में F और C, E की वैल्यू भी 1 आएगी यहां पे. क्लियर? यही वाली प्रॉब्लम कह रहे थे बच्चे. यस सर. ओके, नाउ 3 को डिस्प्ले करने के लिए क्या होगा F और E इज नाउ विजिबल. F और E मेरा इनएक्टिव हो जाएगा, बाकी वैल्यू 1 हो जाएगी. सिमिलरली व्हेन आई डिस्प्ले 8 डिस्प्ले होगा तो ये सारे अल्फाबेट पे वैल्यू मेरी 1 आ जाएगी. यस सर. ओके, इफ आई एम डिस्प्ले 9 हियर देन व्हाट हैपन, देन इज E इज नाउ नॉट विजिबल. E की वैल्यू नहीं आएगी. यस E सर. की वैल्यू 0 हो जाएगी, बाकी सब 1 आ जाएगा. देखो ये ट्रूथ टेबल सबको समझ लग गया, ये सब बना लोगे ट्रूथ टेबल. यस सर. ओके, सो इस अलावा अब इसको मैंने अब लॉजिक डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है. चेक आउट दिस वन. ये ट्रूथ टेबल सबको बनाना आ गया बिकॉज आप सबने ये सारा ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू 4 5 6 7 सबकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी यहाँ पे. सो दैट इज अ फाइनलाइज्ड ट्रूथ टेबल फॉर द BCD to 7 segment display. Now I have to go with your find out the value of the output. ये जो हमारी थी बेसिकली, this is the basically input. ये मेरी 4 वैल्यू है, that is your input and this is your output. Okay, now I have to find out the value of A. हमने इसका लॉजिक डायग्राम बनानी है अब with the help of your output. उसके अकॉर्डिंग हम A से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, B से करेंगे, C की. ये सबकी वैल्यू हमें बाय यूजिंग K में फाइंड आउट करनी पड़ेगी. अब देखो वो कैसे करेंगे. मैं ये वाला पार्ट नहीं मिस रब करता हूं. If I display A, so we have to make A को जो अगर मैं डिस्प्ले करना चाहूंगा, मेरे पास कितनी वैल्यू थी 0 से लेके 9 तक वैल्यू आ रही थी डेसिमल की. सो मींस वी हैव टू रिक्वायर्ड 16 वेरिएबल के 16 बॉक्सेस के मैप फॉर दैट.
एंड आउटपुट कौन कौन सी है आपकी, दैट इज B0, B1 एंड दैट इज नाउ B2 एंड B3। ये मेरी इनपुट थी बेसिकली। यस सर, बोर्ड विजिबल है बच्चे सबको? यस सर, क्लियर है बच्चे? नाउ इसके अकॉर्डिंग I have to put up the value 0 0 0 1 1 0 1 1, sorry 1 1 1 0. Similarly, this is the value is now 0 0 0 1 1 1 and 1 0. Okay, so now put up the value of A here. A की वैल्यू आपके पास क्या आनी है यहाँ पे मैं बताता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। A की वैल्यू आपके पास आनी है, सभी 1 आएंगे, 1 0 1 1 0 with all are 1। यहां तक पता लग रहा है बच्चे? एनीवन हैविंग द डाउट अप टू दिस एंड? मैंने क्या किया यहां तक अभी? एनीवन हैविंग द डाउट अप टू दिस एंड? हेलो क्लास, हाउ आई डू ड्रॉ द के मैप फॉर द पर्टिकुलर ए। ये मैंने ए का के मैप बनाया है, ए की आउटपुट देके। ए की आउटपुट पे मेरा 1 कहां पे आ रहा है? दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 14। ओके, आई हैव द पुट ऑफ द वैल्यू ऑफ ए। 0 के वैल्यू 1 है, फिर आएगी 2 पे वैल्यू 1 आ गई, 3 पे वैल्यू 1 आ गई, 5 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज अ डेसिमल वैल्यू 5 से लेकर 9 तक, 1 1 5 6 7 8 9। दिस इज द वैल्यू पुट अप, आई एम पुट अप द वैल्यू ऑफ 9 अप टू दिस वन। अब 9 के बाद मेरी टर्म ही नहीं है, 9 के बाद टर्म नहीं है मींस वी हैव टू मेक डोंट केयर दैट टर्म्स। कुछ भी वैल्यू हो सकती है, so I have the make don't care like cross. So that is I have draw the output of the A in the terms of the 416 boxes K map। जहां पे मेरे डेसिमल की वैल्यू 1 आ रही है, वहां पे मैंने मिन टर्म्स की वैल्यू 1 कर दी है, और 9 के बाद मेरी कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं थी, उसको मैंने डोंट केयर टर्म कर दी है। नाउ चेक आउट दिस वन बच्चे, यहां तक किसी को डाउट बताओ? नो सर, आर यू ओके अप टू दिस पॉइंट? यस सर, हेलो यस सर, हेलो स्टूडेंट्स, क्लियर टू एवरीवन अप टू दिस पॉइंट? Yes sir, yes sir, yes sir. यस सर, हेलो Yes sir. यस सर, क्लियर, बच्चे, आवाज आ रही है? यस सर, Yes sir. Yes sir, clear है. क्लियर है। Yes sir. तो यहाँ Yes, से sir. अब हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ए की। अब ए में अब आप यहाँ पे पेयर बना लो। पेयर कैसे बनाओगे? देखो यहाँ पे अब एक ये बन जाएगा ऑक्टेट आपका, देखो डोंट केयर के साथ, ठीक है। एक ऑक्टेट अपने 1 कवर हो गए, और क्या बनेगा बताओ इसमें? और ऑक्टेट एक ये बन जाएगा, यस ये सर, ऑक्टेट है दूसरा, ठीक है। फिर 1 बच गए, ये वाले, ये 1 बच गया ये आपका, 4 बन जाएगा, 4 की ये बन जाएगा क्वाड यहाँ पे। यस सर, मगर 2 ऑक्टेट बन गए, एक क्वाड बन गया, ठीक है। और एक आपका क्वाड और बन जाएगा, वो बन बिकॉज जाएगा। चारों कॉर्नर पे 1 है आपका, यस सर, ठीक है। मींस 2 ऑक्टेट और 2 क्वाड बन गए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज द B3 प्लस B1। दिस इज द वैल्यू फॉर द क्वाड। ये यहाँ पे जो ऑक्टेट बना था उसकी वैल्यू कॉमन क्या था? B1, तो ये B1 इस क्वाड के लिए आ गया। यहाँ पे जो क्वाड वैल्यू था वो B2 था, B3 सॉरी, B3। तो ये क्वाड की वैल्यू मेरी B3 आ गई, ये वाली, ये ऑक्टेट की। अब ये क्वाड है, इसके वैल्यू कॉमन आनी थी B0 एंड B2, B0 एंड B2 प्लस B0 एंड B2 प्लस दूसरे क्वाड की, ये चारों कॉर्नर वाला क्वाड जो बना है उसकी वैल्यू आएगी आपकी, इस दोनों पे कॉमन क्या है आपका? B0 बार, और वर्टिकल पे क्या कॉमन है?
that is a 0, that is a B2 bar. So that is a finalized value of your value of the variable a. It should be equal to B3 plus B1 plus B0 B2 plus B0 bar and B2 bar. देखो यहां तक बच्चे a की वैल्यू फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम? नो सर। मींस जैसे आपने a की वैल्यू फाइंड आउट की है बाय यूजिंग वन के मैप, वैसे ही b की वैल्यू निकालोगे, c की, d की, e, f और g. दिस इज अ वेरी लेंथी टॉपिक फॉर द कंपैरिजन विद द अदर वंस. मींस यहां से आप a की वैल्यू, मैंने एक सिंगल वैल्यू निकाल दी है बाय यूजिंग योर के मैप. सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b, c, d, e, f और g. उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे 7 इक्वेशंस आ जाएंगी a b c d e f g की वैल्यू यस सर। by using different value of k map. यस सर। तो उन सातों को उसके बाद आपने एक लॉजिक डायग्राम से ड्रा करना है. That is your finalized LCD to BCD to 7 segment display. Clear? तो मींस Yes, उस केस sir. में क्या होगा, आपके पास 4 इनपुट बनेगी. वो मैं डायग्राम आपको थोड़ी सी रफली बना के बता देता हूं. पहले देखो यहां तक पता लग गया, जैसे मैंने a की वैल्यू निकाली है, सिमिलरली वी हैव टू ड्रॉ द वैल्यू ऑफ b c d e f g. यहां तक कर लोगे? एनीवन हैविंग द डाउट अप टू दिस टॉपिक BCD टू 7 सर टेबल खुद बनाना होगा गिवन Tell. होगा? सर टेबल बताओ बच्चे, गिवन यहाँ होगा तक सर कोई कि खुद doubt है? बनाना होगा? चले आगे. एक्सक्यूज मी सर। So now I have to raise this one. जैसे मेरी a की वैल्यू निकली है, वैसे ही मेरी g तक सारी वैल्यू निकल जाएंगी. ओके, तो देन लास्ट में मेरी a b c d की वैल्यू निकल आई, b c d e f और g की कोई भी वैल्यू निकल आई आपकी यहाँ पे. ठीक है, के मैप से अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे, कोई वैल्यू निकल आएगी. तब लास्ट में आप अपना लॉजिक डायग्राम बनाओ. दैट इज जैसे b0 हुआ, b0 इन्वर्ट हुआ, दैट इज अ b0 बार. सिमिलरली b1 के साथ नॉट गेट लगाया तो ये b1 बार बन गया. सिमिलरली b2 विद नॉट गेट, दिस इज योर b2, दिस इज अ b3, ये वैल्यू मेरी b3 बार निकल आई. ठीक है, अब मान लो a को मैंने ड्रॉ करना है. a को ड्रॉ करूंगा तो मैं अब कॉरस्पॉन्डिंग वो वाली इनपुट लेता रहूंगा साथ में कि b3 से ज्वाइन कर लिया, b1 से ज्वाइन कर लिया, वो आगे मैं एंड और नॉट गेट बनाता रहूंगा, जैसे हमने प्रीवियसली किसी भी के मैप से लॉजिक एक्सप्रेशन को लॉजिक गेट में कन्वर्ट करवाया. अब बच्चे बताओ, लास्ट में आप इन सब की के मैप निकाल के आपको लॉजिक डायग्राम बनानी पड़ेगी. दैट इज अ सम लॉन्ग क्वेश्चन टाइप दिस वन, बट ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें इसका लॉजिक जरूर पता होना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू decoder which we use as the BCD to 7 segment display. Tell anyone having the doubt up to this कि क्या प्रोसेस है. अब ये पूरा मेथड यहाँ पे सॉल्व करना बच्चे काफी मुश्किल है. इट इज अ वेरी टाइम टेकर कि एक के मैप तो सॉल्व आपने जैसे कर दिया है, सिमिलरली 6 के 6 अदर के मैप भी वैसे ही सॉल्व करोगे. वो फाइनल रिजल्ट के अकॉर्डिंग, जैसे हमने प्रीवियसली लॉजिक डायग्राम हम बनाते थे मल्टीप्लेक्सर में, डी मल्टीप्लेक्सर में, फुल एडर, हाफ एडर में, कॉम्बिनेशन में बनाई थी, वैसे ये डायग्राम बनाएंगे. Now clear up to this point? Tell anyone having the doubt up to this and tell. बताओ Sir. बच्चे. क्लियर है बच्चे सबको? सर आपको तो सुननी है. बच्चे आवाज आ रही है सबको? हेलो सर। हाँ जी हाँ जी, बताओ नो बच्चे. सर तो हाँ आ रही है सर, बट हम हेलो कबीर. सर बीच में बच्चे बोल रहे हैं, उनकी आवाज सर कबीर. हाथ को नहीं आ रही है. हेलो. मे बी हेलो. सर मैसेज करते हैं यहाँ से. I am audible to all of you. Yes, sir. कबीर. Yes, sir. सर चैट बॉक्स देख लो. हेलो. आवाज नहीं आ रही बच्चे? सर आ रही है. हेलो एवरीवन. यस सर। यस सर। हमें आ रही है बट आपको नहीं आ रही. कबीर. I am audible to all of you. सर चैट बॉक्स ही चेक कर लो. सर चैट बॉक्स देख लो. सर ने भी नहीं सुना.
अब आ रही है आवाज बच्चे? यस सर। पता लग गया किसी को डाउट है यहाँ तक रिगार्डिंग BCD to 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर? सर हमारी आवाज नहीं जा रही है आपको। अब आ रही है बच्चे? मेरे को आपकी आवाज आ रही है। मेरे को बताओ यहाँ से किसी को डाउट कुछ प्रॉब्लम होगी यहाँ से मेरे से पूछ लो बच्चे दोबारा, कैसे इसको सॉल्व करना है। लॉजिक समझ लग गया है कि हमने दैट इज आई हैव टू एक्सप्लेन द लॉजिक एट टू दिस एंड, बाकी कंक्लूजन सॉल्यूशन आपके एंड पे है। मैंने लॉजिक बता दिया इसका कि इससे फुल क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यस सर। ठीक है सर हाँ जी बताओ बच्चे। सर एक बार शॉर्टली रिपीट कर दियो सर, सब तो बोलो की करना ਹੁੰਦਾ ਸੀ बच्चे सबसे पहले जैसे मैं वर्बली आपको यहीं से बता रहा हूं, आई हैव टू इन दिस क्वेश्चन बेसिकली आई हैव टू ड्रॉ द BCD to 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ओके 7 सेगमेंट डिस्प्ले में मैंने एक आपको LED वाला डिस्प्ले बना के दिखा दिया जहां पे ABCDEFG करके हर बार पे ऊपर मेंशन कर दिया था। अब मैंने एक डेसिमल नंबर को BCD में BCD कोड की तरह उसको एक डिकोडर की तरह काम करवाना 7 सेगमेंट को। उसके लिए सबसे मैंने ट्रूथ टेबल बनाया जिसमें मैंने डेसिमल नंबर के 0 से लेकर 9 तक उसका BCD कोड कर दिया, 0 से लेकर 9 तक 4 बिट का BCD कोड कर दिया। ओके उसके बाद मैंने ABCDEFG तक 7 आउटपुट ली और उस आउटपुट के अकॉर्डिंग जो सी मेरी LED पे जो बार हाईलाइट होगी उस वेरिएबल डेसिमल के लिए वो वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बिकॉज जैसे मान लो मैंने 8 को अपने कैलकुलेटर पे राइट अप किया है, उस केस में मेरे ABCDEFG सभी की वैल्यू 1 हो जाती है। ओके अगर मैं 0 डिस्प्ले कराता हूं तो उस केस में भी मेरी 0 की वैल्यू नहीं आती, ठीक है ना, G की वैल्यू नहीं आती। उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रूथ टेबल बना दिया। ट्रूथ टेबल बना दिया, ट्रूथ टेबल के बाद हमने उसका एक लॉजिक डायग्राम बना दिया कि उसको लॉजिक डायग्राम बना कैसे हुआ। उसके अकॉर्डिंग मैंने A की आउटपुट सबसे पहले ली, उसमें से क्योंकि 4 बिट की इनपुट है तो मैंने BCD कोड केवल 9 तक ही लिखा हुआ, तो मैंने 16 बॉक्सेस का K-मैप बनाया। K-मैप जो मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है वहां से आपके डेसिमल की 0 से लेकर 9 तक वैल्यू A की आउटपुट लिखी हुई है, बट 9 के बाद से लेकर 15 तक जो भी वर्ड है वो हमारे पास आउटपुट नहीं है, तो वो मैंने डोंट केयर कर दी क्रॉस। उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वाड बनाए, पेयर बनाए। A की आउटपुट के अकॉर्डिंग मेरी A की आउटपुट निकली B3 plus B1 B0 B2 plus B0 and B2 बार। ओके सिमिलरली आप सभी की ये आउटपुट निकालोगे इन टर्म ऑफ B की, C की, D की, यही K-मैप बना के ऐसे ही। ओके तो उसके बाद मैंने एक लॉजिक डायग्राम आपको बोर्ड पे बना के दिखा दिया कि ऐसे 4 मेरी इनपुट आएंगी, उन चारों इनपुट के आगे नॉट गेट लगा के उसका बार में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आप एक ही आउटपुट बनाओ जैसे हम पीछे लॉजिक गेट डिजाइन करते थे यूजिंग योर सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन, तो वे एक बड़ी सी डायग्राम आपकी डिजाइन हो जाएगी। मींस जहां पे मेरे को ये BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर होगा वहां पे लास्ट में ऐसी लॉजिक डायग्राम इनबिल्ट बोर्ड पे बनी होगी, जो हम ग्रीन वाले MCB बोर्ड देखते हैं ना, CCB बोर्ड, उसमें ऐसे ही डायग्राम LED के अकॉर्डिंग लगी होगी, तो वो BCD 7 सेगमेंट की तरह चलेगा। अब बताओ एनीवन हैविंग द डाउट अप टू दिस एंड? क्लियर इंद्रजीत? यस सर। हेलो यस सर क्लियर। बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। क्लियर है सर। यस सर आपकी क्लियर है आई एम ऑडिबल टू यू? सर। Yes, sir. यस सर। हेलो हेलो हेलो। हेलो क्लास यस सर। आ रही है बच्चे? अब आ रही है आवाज? यस सर। सर आपको नहीं मारी आती कभी कभी? हेलो इंद्रजीत? यस सर। यस सर। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। यस सर। यस सर। यस सर दे सर ने आवाज नहीं जा रही ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀ। Hello. तो क्लियर है यहाँ तक? चले आगे? Sir, we can hear you, but you cannot hear us, sir. हेलो थोड़ी और जोर दी बोल यार। यस सर। हेलो एवरीवन। भाई मुझे लगा अगर जोर से चिल्लाएंगे तो सर को ठीक है बच्चे? सुनाई देगी। यस सर। यस सर। चले आगे लेट्स स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। हेलो 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 सर आपको आवाज नहीं आ रही सर हमारी? बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। सर यू आ रही है? अब बोलो जरा कोई। सर आपके हेडफोन में शायद नहीं अब प्रॉब्लम आ ठीक रही है? है। अब आ रही है? यस सर।
सर स्पीकर तो ऑन कर लो, सिर्फ माइक सर ही ऑन हमें है। तो आपकी आवाज आ रही है, आपको हमारी नहीं आ रही। जी मेरी तरफ से सब ऑन ही है। अब आ रही है आवाज? यस सर, Yes, आवाज sir. तो आ रही है। सर अब हमें तो ठीक है। सर आ रही है, आपको नहीं हमारी आ चलो रही। ठीक है। अब नाउ पहले बताओ, अब यहाँ तक ये क्वेश्चन ड्राइव कर लोगे अपने आप, सारा गेट बना लोगे? यस सर, इजी है। Question is very lengthy now. That is in the occur in the case of your subjective type, not in the term of your objective. Okay. यस सर। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ तक हमने डिकोडर पढ़े अभी। डिकोडर दैट इज द टाइप ऑफ द डिकोडर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एनकोडर पार्ट। मेरी अब आ रही है आवाज? ठीक है। हेलो सर आ रही है आवाज। चलो ठीक है। नाउ स्टार्ट विद द एनकोडर। एनकोडर सिमिलरली, ऐसे पीपीटी में भी मैंने वो डिस्प्ले किया हुआ है। एनकोडर दैट इज अ बेसिकली रिवर्स ऑफ द डिकोडर। ओके, एनकोडर में क्या है बेसिकली? एनकोडर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट व्हिच इज डिजाइंड टू परफॉर्म द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ द डिकोडर। ओके, डिकोडर an encoder has n number of input lines and m number of output line. Means this is a encoder part. Encoder, it should have the n number of lines and m number of output lines. Okay, so now block diagram of the encoder. The encoder accept an n input digital word and converting into m bit digital words. Means यहाँ पे 2 power n वाला फिनोमिना नहीं है यहाँ पे आपके पास। यहाँ पे एनकोडर में क्या है? n इनपुट्स होगी, उसके ऊपर वो कन्वर्जन के बाद m आउटपुट लाइंस हो सकती हैं इसकी एनकोडर की। ओके, अब एनकोडर के पास ना हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। टाइप कौन सी है? फर्स्ट वन एनकोडर इज नाउ प्रायोरिटी एनकोडर। मैं टाइप्स यहाँ पे लिख देता हूं, उसमें से कुछ टाइप हम डिस्कशन करेंगे। What is the encoder? First encoder is now priority encoder. Second one is now decimal to BCD encoder. Third one is now octal to binary. Okay, fourth one is now hexadecimal to binary. Okay class, so these four types of binary binary encoders, so I have to discuss with all of you by one इसमें से कोई भी हम रेफरेंस के लिए एक दो एनकोडर डिस्कस कर लेते हैं। आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? बच्चे आवाज आ रही है ना अब? यस सर। यस सर। हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। यस सर आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है। सबसे पहले हम यहाँ पे अब एनकोडर डिस्कस करेंगे। प्रायोरिटी एनकोडर। ओके, एनकोडर डिस्कस करेंगे। What is visible to all of you? यस Hello सर। everyone. यस सर।
is now y1 and y0. I am audible to all of you students. आवाज आ रही है बच्चे? Yes, sir. यस सर। हेलो, आ रही है बच्चे आवाज अब? Yes, sir. सर आप बताओ सर, आपको आ रही है? सर ये बच्चे अब हेलो 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 सर आवाज आ रही है but सर आवाज आ रही है। बोल दिया करो ना बच्चे, यहाँ पे माइक की प्रॉब्लम है इसलिए कोई ना कोई बोल दिया करो बीच में, मैं कंटिन्यू करता रहूं साथ में, ठीक है? So now this is priority encoder. All of you show me your diagram. Priority encoder पे मेरे पास 4 इनपुट हैं, इनपुट D0, D2, okay? D0 को मेरे पास इनपुट है, it should have the lowest priority, okay? And D3 it should be known HP, that is the highest priority input. Means priority encoder में मेरी क्या है, जो input है it should be on priority list. D0 मेरी 4 input है, D0, D1, D2 and D3. In that case D0 input is now lowest priority and D3 is now highest priority. Clear all of you? In case of highest priority and the output is now y1 and y0. So now I have to draw the truth table for that. ड्रॉ ही कर रहा हूं, मैं समझा नहीं रहा हूं इसमें बच्चे भी। नाउ क्लास देखो बच्चे, एक तो इसका ट्रूथ टेबल सबको दिखाई दे रहा है, सारे सारे कंपोनेंट बीच में दिखाई दे रहे हैं सबको, सबको विजिबल है बच्चे ट्रूथ टेबल ऑफ द प्रायोरिटी एनकोडर? yes, sir. Yes, Okay. यस सर Yes, sir. विजुअल Now, सबसे पहले है प्रायोरिटी कोडर में, दोबारा बच्चे एक्सप्लेन कर रहा हूं, इट शुड हैव द 4 इनपुट, that is the D0 to D3 with the help of your priority. D0 input have the lowest priority and D3 have the highest priority, because that is should be known as your priority encoder. And it should have the 2 output y1 and y0. means अगर इसकी 2 raised to power n मान लो इनपुट हो गई है, तो n क्या है इसकी आउटपुट? For example, for that case means 4 input and the 2 output here. Okay. Sorry. Now there are 4 inputs D0 through D3 and 2 output Y1 and Y0. Sorry. Out of the 4 input,
D3 has highest priority and D0 has the lowest priority. I have already discussed with you. Means अगर मेरी मान लो D3 की वैल्यू 1 होती है, मींस हाईएस्ट प्रायोरिटी मेरी है D3 की, अगर मेरी D3 की वैल्यू 1 होती है, then Y1 and Y0 should be 1 1. Now tell the this case, ये डिस्कस सबसे पहले केस करते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आ जाओ. हाईएस्ट प्रायोरिटी पे क्या है, मान लो मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी थी D3 पे, D3 के केस में मेरा यहां पे वैल्यू 1 आ गई, मींस मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी है D3. D3 का डेटा जब 1 होता है, I have does not bother the other inputs. बाकी इनपुट्स 0 है कि 1 है, मैंने वहां पे डोंट केयर कर दिया D0, D1, D2 कि उसपे कौन सी मर्जी इनपुट हो, मेरी आउटपुट 1 1 आउटपुट आएगी. अकॉर्डिंग टू दिस वन मींस जो मेरी आउटपुट D3 पे हाईएस्ट प्रायोरिटी मेरी जब डिस्कस हो रही है, उसके बिहाफ पे मुझे नीचे वाली प्रायोरिटी को डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज D3 इज नाउ माय हाईएस्ट प्रायोरिटी. अगर D3 की वैल्यू 1 है, then Y1 and Y0 it should be equal to 1 1 in respective of the other input. मेरे देखो ये बात समझ लगी बच्चे सबको? Yes sir. Means I have to chosen the input depend upon the priority level. अगर मेरी D3 की वैल्यू 1 हो गई है तो बाकी इनपुट्स की मेरे पे कोई वैल्यू नहीं है ड्यू टू द प्रायोरिटी बेसिस. बाकी कोई भी क्रॉस हो, मींस कोई भी डोंट केयर टर्म 0 1 either हो, I have to does not bother about this thing. My output is 1 1. Okay, now the second case, if D3 is now 0, D3 is now 0, मान लो D3 की वैल्यू 0 हो गई है, उस केस में अब D2 की वैल्यू 1 हो गई है, तो मेरी उसके अलावा उससे लोएस्ट प्रायोरिटी अब D2 की रहेगी. मींस Yes, D3 की वैल्यू तो लोएस्ट प्रायोरिटी में आ गई, वो 0 हो गया, उसकी प्रायोरिटी हम देखेंगे नहीं. उसके बाद प्रायोरिटी आ गई आपकी D2 की, उसके अकॉर्डिंग D1 और D0 की वैल्यू कोई भी रहे, इट डज नॉट बॉदर, वी हैव टू लुक अप द प्रायोरिटी ऑफ द D3 टू D2. D3 हाईएस्ट थी, उसकी वैल्यू 0 है, उसकी प्रायोरिटी हम देख नहीं, उसके अलावा D2 की प्रायोरिटी आ गई. D2 की वैल्यू अगर 1 है तो बाकी वैल्यू क्रॉस आई, इनपुट कुछ भी हो, D0 की इनपुट कुछ भी हो, चाहे D1 की इनपुट कुछ भी हो, आपकी जो आउटपुट आएगी वो आएगी 1 0. क्लियर? नाउ उसके बाद आपकी प्रायोरिटी शिफ्ट होगी D1 पे. जब D1 पे प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई है तो उस केस में मेरी ऑलरेडी D3 और D2 0 होगी, तो मैं D1 की प्रायोरिटी पे सेट करूंगा, जो मींस मेरी प्रायोरिटी लेवल डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रही है D3 से D0 तक. ओके, जब D1 की प्रायोरिटी आई तो ये ऑलरेडी D3 D2 0 होने चाहिए, और D0 की वैल्यू 0 1 हो, इट डज नॉट मैटर बिकॉज इट शुड हैव द लोएस्ट प्रायोरिटी. तो उस केस में मेरी वैल्यू आउटपुट की आ गई 0 1. ये वही कॉम्बिनेशन बने हुए हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, जो बाइनरी की आउटपुट की कॉम्बिनेशंस है. नाउ इफ आई एम गो टू द लोएस्ट प्रायोरिटी, जब लोएस्ट प्रायोरिटी की वैल्यू 1 आई, पहले तीनों हाईएस्ट प्रायोरिटी की वैल्यू 0 आएगी, तभी हम लोएस्ट प्रायोरिटी की बात सुनेंगे. अब उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो उसके से वैल्यू मेरी क्या आ गई है 0 0. क्लियर? नाउ if there is all data are 0, output कुछ भी हो, it does not matter, output कोई effectively नहीं है. So that is the finalized truth table of the priority encoder. That should be priority based on your D3 to D0 or either D0 to D1. देखो इस ट्रूथ टेबल में किसी को डाउट? No sir. कि मींस किस प्रायोरिटी लेवल पे हमारी क्या वैल्यू होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू आएगी. मींस जब हमारी लोएस्ट प्रायोरिटी होगी तो उस केस में मेरी वैल्यू 0 0 होगी, उससे बड़ी प्रायोरिटी होगी तब वैल्यू 0 1 हो जाएगी, जब उससे बड़ी प्रायोरिटी हो जाएगी 1 0 आ जाएगी, जब फाइनलाइज प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी आ जाएगी तो आउटपुट क्या आएगी 1 1. सो दैट इज द priority encoder of in the case of the first type of encoder. Tell anyone having the doubt up to this end. सर हाईएस्ट के पास बाद में J कौन सा, J क्या है नेक्स्ट क्या कॉलम? दोबारा बोलो बच्चे. सर एक कॉलम है ना हाईएस्ट, उसके साथ जो J है वो क्या है? J नहीं है बच्चे, that is the inputs. एक हाईएस्ट प्रायोरिटी है D3 और उसके बाद इनपुट हमने D2 और D1 को प्रायोरिटी नहीं ना दी, वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर पे प्रायोरिटी जा रही है, वो इनपुट हो गई है चारों ही इनपुट, बट प्रायोरिटी बेस के ऊपर हाईएस्ट है, लोएस्ट है और वो इनपुट्स हैं. यस सर. Anyone having the doubt up to this truth table? ये truth table इसका इंपॉर्टेंट है बेसिकली. Clear up No to this sir, point? clear sir.
ओके सो नाउ अब इसके भी यहाँ पे अब इसका हमने बनाना है के मैप। देखो यहां तक हमने ट्रूथ टेबल सॉल्व हुआ, अब इसका के मैप बनाएंगे। इसको प्रोबेबिलिटी कोडर को ड्रॉ कैसे करेंगे ये देखना अब हमें। यहां पे हमारी आउटपुट क्या है y1 और आउटपुट क्या है y0। ओके अब इसके अकॉर्डिंग जो मेरा ट्रूथ टेबल बनेगा, चार आउटपुट है, चार आउटपुट के इनपुट है, सॉरी चार इनपुट के अकॉर्डिंग मेरा 16 बॉक्सेस का के मैप बनना चाहिए। यस और नो? इनपुट चार है ना, Yes, D0 sir. D1 D2 D3 इनपुट 4 Yes, sir. कॉम्बिनेशन है, उस 4 कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग मेरा 16 बॉक्सेस का के मैप ही बनेगा। अब वहां पे वैल्यू कैसे फिलअप करेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस ट्रूथ टेबल आई हैव टू डिसाइड दिस वन। दिस इज y1, ये y1 का पहले बनाते हैं, दैट इज D0 D1 D3 एंड D2। ओके अब देखो y1 पे 0 पे क्या है? डोंट जो केयर। वैल्यू होगी क्रॉस, ये लिख लेता हूं आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14 ओके 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 पे क्या है आपका? क्रॉस, ये क्रॉस कर दो यहाँ पे। ओके नाउ 1 पे क्या आया? 1 बाइनरी है तो क्या लिखा आ गया वहां पे? 0, ये 0 आ जाएगा बिकॉज ये चार कॉम्बिनेशन आएंगे ना। 0 पे क्या था? क्रॉस। 1 पे क्या था? 0। और 1 के बाद 2 पे क्या आ गया? 2 पे भी 0 आ गया, यहाँ पे डॉट केयर है। 2 पे भी 0 और 3 पे भी 0। ये देखो स्टेप अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं? यहाँ पे यस सर। मींस वहां पे क्रॉस लिखा हुआ है, मींस दैट इज अ बाइनरी फॉर 2 एंड 3। अगर यहाँ पे 0 होगा तब भी 0 है, अगर यहाँ पे 1 होगा तब भी 0 है। मींस अगर 0 होगा तो वो सेकंड वाली मिन टर्म आएगी, उस पे 0 आ गया। अगर 1 होगा तो उस केस में 3 आ जाएगा, तो वो उसके मिन टर्म आ जाएगी। ओके हमारे नियन रोवत हुई है लोग वैसे का जरा के रुको रुको बच्चे, चलो ये क्लियर हो गया बच्चे? सबको बताओ पहले कि यहाँ पे मैंने Yes, 0 0 क्यों लिखा है? क्रॉस मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू 0 मिन टर्म। 1 पे था 0 और 2 3 पे भी 0 ही आ रहा है। बाकी आप सब पे देखोगे ना तो 1 1 ही आएगा, देखना, क्योंकि यहाँ 1 है तो सब में क्रॉस है। कोई 0 1 कुछ भी ले लो, आंसर क्या आएगा आपका? y1 की वैल्यू क्या आ रही है? 1 ही आ रही है। ठीक है बच्चे, ये देखो यहाँ तक ये पता लगा के मैप कैसे बनाना है। यस सर। तो इसके रिपीट अकॉर्डिंग करो क्या हो सर एक गया? बार। ये दो आपके ऑक्टेट बन गए हैं यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताओ। सर एक बार के मैप रिपीट कर दिया सर, किस तरह के 1 मैप 1 पर है? देखो, मैं के मैप मैंने बनाना है आउटपुट का y1 और y0 का। क्लियर?
y1 के अकॉर्डिंग मेरे पास 4 इनपुट है, 4 इनपुट है कि मेरी 16 बॉक्सेस का के मैप बनेगा। क्लियर? D0, D1, D2 एंड D3। क्लियर? नाउ व्हाट इज द मिन टर्म्स वैल्यू? अब हमें मिन टर्म की वैल्यू ढूंढनी है। देखो 0 0 के वैल्यू पे क्या आ गया? डॉट के टर्म क्रॉस। जी सर। एक सेकंड में बच्चे, जी बच्चे बताओ, अब देख लिया यहाँ का ट्रूथ टेबल पता लग गया अब के में आपका? हेलो, यस सर। ठीक है। तो मींस 0 पे जब आया तो मेरा क्रॉस आ गया, डोंट केयर। अब यहाँ पे मेरा 0 था, ये बाइनरी 1 का 0 1 का 0 कर दिया। अब बाइनरी यहाँ पे 1 आ गया, ये तो 0 0 रहना ही है। यहाँ पे क्रॉस आ गया, क्रॉस आने का मीनिंग मिलता है ये बाइनरी है 2 और 3 की। 2 और 3 की बाइनरी में क्या आंसर आएगा? 0। उसके अकॉर्डिंग 0 आ गया, 3 पे और 2 पे 0। बाकी सभी देख लो, डोंट केयर की कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग 1 सभी पे 1 आएगा। तो मेरा सर सिर्फ y1 में देखना है हमेशा। y1 देखना बच्चे, ये y1 की देख रही है वैल्यू। सो y1 की Okay. जो आपकी वैल्यू आएगी ना यहाँ पे, इट शुड बी इक्वल टू d2 प्लस d3, क्योंकि ऑक्टेट बन गया आपका। इस वाले ऑक्टेट पे देखोगे तो ये कॉमन आएगा आपका, ऊपर वैसे तो कॉमन आएगा नहीं, होरिजेंटल कॉमन आएगा, यहाँ से d2 आ गया। मींस ये ऑक्टेट की वैल्यू d2 है और इसकी वैल्यू d3 है। क्लियर एवरीवन? क्लियर है बच्चे? यस सर। तो सिमिलरली आप ट्रूथ टेबल बनाओ y0 का, तो y0 पे वैल्यू निकलेगी आपकी, दैट शुड बी नो d3 प्लस d2 बार। मींस यहाँ पे बेसिकली ना हमने ट्रूथ टेबल बनना तो 16 इनपुट का ही था, बट हमने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग 16 इनपुट वाला बनाया नहीं, बनाया 4 में ही वो डिस्क्राइब कर दिया अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी लेवल। बाकी सभी इनपुट को डोंट केयर कर दिया, हमें डज नॉट बॉर्डर, हमारी आउटपुट तो वही आनी है। ठीक है, तो जो हमारी y0 की वैल्यू आनी थी, y0 it should be now d3 plus d2 bar d1, this is the value of y0 and y1। इसके अकॉर्डिंग फिर लास्ट में आप लॉजिक डायग्राम बना लो दोनों को सॉल्व करके। तो d0 d1 d2 and d3 you have to draw the last logic diagram for that। ये मैं चाहे आपको यहाँ बना ही देता हूँ लॉजिक डायग्राम, आपको सबको रिपीट भी हो जाएगा। मींस दैट इज द रिक्वायरमेंट। d2 d3 सभी है इसमें, देखो d1 d2 d3 d4 है ही नहीं, सॉरी d4 है ही नहीं इसमें। तो सबसे पहले y1 क्या है? d1 प्लस d2 प्लस d3, मीन इट शुड बी नाउ OR गेट। d2 प्लस है ना, d2 प्लस d3, दिस इज द वैल्यू ऑफ y1, d2 इज द d2 प्लस d3। नाउ y0 इट शुड बी इक्वल टू द एंड गेट का, किसका है? एंड गेट है d1 का प्लस d2 बार का, d2 बार मींस यहाँ पे एक नॉट गेट भी लगाना पड़ेगा, जिसका जो वैल्यू आएगी, दिस इज योर d2 बार
D1, अब इन दोनों का लग जाएगा OR गेट विद योर D3. This is the OR gate. This is the value of Y0. So now clear, that is the logic diagram of a priority encoder. देखो बच्चे क्लियर है सबको? All of them having the clear the priority encoder. Yes sir. ठीक है बच्चे? So now that is the encoder part we have to cover. First one is the priority encoder. इसके अकॉर्डिंग अब आपका एक ना सेकंड एनकोडर भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. That is the octal to binary encoder. ये फर्स्ट वाला हो गया, अब सेकंड वाला रिपीट कर लेते हैं. एग्जांपल कोई भी एक दो कर लेते हैं उसमें. क्लियर? Second encoder is now octal to binary encoder. ये सारा कुछ पीपीटी भी है बच्चे, मगर you have to solve or note down in your notebooks as per I am doing in your board. That is very okay with you. Now encoder in that. अब इस octal में क्या है? I have to draw the diagram. Octal means 8 इनपुट है आपकी. क्लियर? इनपुट इज नाउ D0 से लेकर D7 तक. एंड बाइनरी एंड कोडर, बाइनरी इनपुट आएगी, दैट इज B0, B1 एंड B2. दैट इज योर आउटपुट. दैट इज द डायग्राम ऑफ योर ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर. क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल कैसा होगा? ये डायग्राम मैं अरेंज कर रहा हूं दोबारा बच्चे. दिस इज डिफाइनिंग ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर. ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर मींस 8 इनपुट्स आएंगी और 3 आउटपुट आएंगी. 2:3 इनपुट एंड द 3 शुड बी नाउ आउटपुट. दैट इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ द डिकोडर. इसका अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा. इनपुट्स D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 and D7. This is the input. Output is now B0 से लेके B3 तक, B2 तक. B0, B1 and B2. Okay. So now if I am doing the input, ऐसे इस पे 1 आएगा, D7 पे 1 होगा और लास्ट पे आउटपुट आएगी 1. ये होगी इसकी आउटपुट लास्ट पे बच्चे. 0, 1, 2, 3, 4, 5 and your 6. कॉरस्पॉन्डिंग बाकी सब 0 आएगा बच्चे. सर ये कैसे? सर ये कैसे आएगी आउटपुट? मैं बता रहा हूँ एक सेकंड. ये मान लो कि अगर D0 की वैल्यू 1 होगी तो इन दैट केस आउटपुट इज नाउ दिस वन. अगर D1 की वैल्यू 1 होगी तब आउटपुट 1 आएगी. D2 की वैल्यू 1 होगी तब आउटपुट ये आएगी. D3 की वैल्यू 1 होगी खाली ये वाली, बाकी सब 0 होंगी तो मेरा डेसिमल 3 डिस्प्ले होगा. अगर D4 की वैल्यू हाईलाइट होगी तब मेरा 4 आएगा. दैट इज द कॉरस्पॉन्डिंग आउट इन दिस. यस दैट सर. इज ऑक्टल टू बाइनरी
एनकोडर, यस बाकी सब सर, जीरो आ जाएगा बच्चे। यस सर, सब पे जीरो आ जाएगा, बाकी कॉरस्पॉन्डिंग एक एक बिट आएगी। अगर D0 है तो जीरो बाइनरी आ जाएगी, अगर D1 है तो 1 आ जाएगा, अगर यहाँ पे D7 है तो तीनों 1 आ जाएगा। So that is your octal to binary encoder. Tell anyone having the doubt up to this and encoder and decoder part, encoder part, sorry. Tell anyone. सर हेक्सा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ 16 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਨਪੁਟ। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड होल्ड करो बस। एक now बच्चे बताओ इस पे anyone having the doubt up to this and any query up to this and regarding the encoder and the decoder part with the help of the 7 segment and the priority and the octal to binary decoder encoder. क्लियर सर। क्लियर है बच्चे? यस सर। चलो सर एक्सक्यूज नेक्स्ट पार्ट करते हो। बताओ बताओ बच्चे, एनीवन हैविंग द डाउट, क्लियर विद सर मी? हेक्सा में 16 इनपुट्स आ जाएंगी। हाँ हेक्सा में क्या हो गया, 16 आ जाएंगी, बिल्कुल सही बात है, वेरी सही। हेक्सा में 16 आ गई और 4 बाइनरी आ जाएगी, यस सर, बस और क्या, पैसा ही हो जाएगा, बन जाएगा। यस सर, ठीक है, सेम ही बन जाएगा, सिमिलर ही बन जाएगा। हाँ बेटा एनकोडर पार्ट हो गया क्लियर। यस सर। चलो ये भी ना, इसमें ना पीपीटी में भी चाहे एक बार देख लो आप बच्चे, पीपीटी में आके गो थ्रू कर रहा हूँ। ये A2 बाइनरी एनकोडर जैसे मैंने अभी बनाया वो डायग्राम आपको मिल रही है सामने, प्रायोरिटी एनकोडर की भी उसने दी हुई है, देखो उसमें 3 इनपुट ली है, हमने 2 इनपुट ली थी आउटपुट, उसने 3 आउटपुट ली है प्रायोरिटी एनकोडर में। ये है बेसिकली क्लियर। जो पीपीटी में है वो आपको उसने, इसलिए मैंने अलग इनपुट से आपको करवा दिया कि पीपीटी में आपको अलग से दूसरी इनपुट की मिल जाएगी। नाउ आई हैव टू डिस्कस विद द सम अदर पार्ट। मैं ना आपको दूसरी पीपीटी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग इट। जो ना पोल है, पोल भी चलो स्क्रीन शेयर कर दी पहले एक बार। ये बच्चे पोल एक दो हैं, ये करो सबसे पहला। चलो ये पोल है बच्चे, सब सॉल्व करो, करके बताओ मेरे को जल्दी।
Quickly, बच्चे, solve this theory question. Only 20 students are pending right now. Give the answer within few minutes, few seconds. जल्दी करो, आगे करें. सर 4 टाइप्स ऑफ एनकोडर ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਰ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ एनकोडर, ਇੱਕ ऑक्टल टू बाइनरी एंड सर बाकी तो ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? Hexa to binary. हेक्सा टू बाइनरी एंड सर एक और Hexa to binary होगी ना, decimal to BCD. ओह. सर पोल का आंसर क्या था? क्लोज करने को मैं क्लोज कर रहा हूँ बच्चे पोल. आंसर इज नाउ कॉम्बिनेशनल सर्किट. यस लॉजिक सर्किट नहीं है, लॉजिक सर्किट तो सारे ही होते हैं, बट दैट इज मेजरली कई ने हाफ एंड 25 पेज जानों ने लॉजिकल भी आंसर दिया, बट आंसर इज नाउ कॉम्बिनेशनल सर्किट. ओके, ये बताओ सेकंड पोल. हो गया. यस सर. I have end of this poll. Answer is now decoding process. Okay, यस सर. now बच्चे start with the next unit with the discussion with the sequential circuit. पिछले हमने अभी जितने भी सर्किट पढ़े हैं, that is the starting with one. I am audible to all of you. Hello everyone. यस Hello. sir. Hello. यस सर. Okay. Yes, sir. Previously हमने जितने भी सर्किट पढ़े हैं, that is the starting from the half adder, full adder, half subtractor, full subtractor, multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder, that are under the category of combinational circuit. Why combinational circuit? Because output must be depend upon the combination of the input. It does not depend upon the past and the previous value of the input. Means जितने भी हमने output define की है, वो input की combination से ही हमें output मिल पा रही है. Okay. So now the second part is now sequential circuit. Sequential circuit is now basically it should be a combinational circuit with the help of some memory unit or memory element. So basically the sequential circuit are those circuit in which there is a memory element or memory cell in which output should be depend upon the previous input and the past outputs. Means जो उसकी आउटपुट है वो मेमोरी में एक तरह का स्टोरेज यूनिट की तरह काम कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी प्रीवियस इनपुट्स भी और पास्ट आउटपुट्स भी उसकी आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर सकती है.
So that's why it is the known as your sequential circuit. That is the combination with the some addition part of the memory unit. It should be including in that. That is the complete diagram. It should be known as your sequential circuit. So means the output must be depend upon the past and the previous values. Where all of you, that is the difference between your combinational and the sequential circuit. Clear हुआ कुछ part? Yes, sir. Hello. Hello everyone. Clear हो गया Yes, बच्चे? sir. Difference between Yes, sir. combinational Yes, sir. and the sequential circuit. Yes, sir. Okay. Now, so according to your sequential circuit, सर There एक बार are- रिपीट कर दो सर। read बच्चे ये है. Sequential circuit are those circuit which will include here some memory element. Due to the memory element, the output of the sequential circuit must depend upon the previous input and the past output. Means किसी previous और past output को पे भी इसकी output depend हो सकती है. अगर इन चीजों पे depend होगी तो previous input और output को कहीं पे save करेंगे. That's why it is include your memory cell. मेमोरी उस पे यूज होती है उस चीज को स्टोरेज करने के लिए. क्लियर? उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंशियल सर्किट जो उसके मेमोरी यूनिट होती है उसको हम क्लॉक प्रोवाइड करते हैं. क्लॉक साइकिल. ओके. So now there are some types of the sequential circuit. Sequential circuit में कौन-कौन सी टाइप्स, कौन-कौन से सर्किट आते हैं जो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे. That is the discussion is type that is known as your flip flops, counters, resistors. I have the discussion each and every one flip flop, counter and the resistor in the sequential circuits. Okay, so now I have the starting with the first one, that is the flip flop. Okay, flip flop. Now फ्लिप फ्लॉप क्या होता है बेसिकली. अब यहाँ पे हम ये चीज सबसे पहले डिफाइन सुनते हैं. ए फ्लिप फ्लॉप इज आल्सो नोन एज ए बेसिक डिजिटल मेमोरी सर्किट. इट हैज टू स्टेबल स्टेट, लॉजिक 1 स्टेट एंड द लॉजिक 0 स्टेट. मींस फ्लिप फ्लॉप जो होता है it should be the type of your memory cell. It will be stored for a single bit at a time, and it should be have the two state, logic 1 state and logic 0 state. Okay, and it can be designed either NOR gate, either NAND gate. Okay, it should be designed either NOR gate or NAND gate. हम NAND गेट से सारी थ्योरीज की डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग योर सारे फ्लिप फ्लॉप को NAND गेट से डिस्कशन करेंगे. ओके, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक फ्लिप फ्लॉप होता है. फ्लिप फ्लॉप मींस इट इज अ टाइप ऑफ योर क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर ऑन द एनिमेट. मींस एक डायग्राम है मेरे पास यहाँ पे. This is Q and this is Q bar. This is a diagram should be known as cross coupled inverter. Cross coupled inverter as memory element. Okay, this is a diagram with the consider of the two NAND gate, and output of the one NAND gate is cross coupled to with the input of the another NAND gate, और दूसरे की आउटपुट पहले वाले की इनपुट बन जाती है. एंड आउटपुट शुड बी नाउ Q and Q bar. Output should be now Q and the second output is the complement of the first output. देखो बच्चे यहां तक चीज क्लियर हुई. सबसे पहले what is the cross coupled inverter as a memory element? Yes sir. Okay, so now
इट शुड बी, सबसे पहले इसकी रिकवरी देख लेते हैं, इसके कुछ पार्ट देख लेते हैं। मान लो if we assume that output of the gate 1 is Q1, मान लो Q की जो वैल्यू है वो मेरी 1, अगर Q की वैल्यू 1 है तो मेरी B2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि जी इसकी जो आउटपुट है वो इसकी इनपुट बनी हुई है। B2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, मींस B2 की वैल्यू अगर 1 है तो मींस Q बार की वैल्यू 0 हो जाएगी, मींस दोनों 1 है तो NAND गेट की आउटपुट क्या होगी? अगर NAND गेट पे दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगी? What is the output of the NAND gate if input is now 1? Then tell. 0. sir. 0. 0. This make QL continuous with another means ये हमारी फिनोमेना ट्रू हो गया। हमने अज्यूम किया Q की वैल्यू अगर 1 है तो Q बार की वैल्यू 0 आ गई उसकी कंप्लीमेंट की। अकॉर्डिंग टू दिस क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर, चेक आउट दिस आउटपुट। बच्चे ये क्लियर हो गया सबको कि नहीं? देखो अगर हम मैंने अज्यूम किया Q की वैल्यू 1 है, वही 1 की वैल्यू इनपुट गई इस पे, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 1 की, अब इसकी आउटपुट 0 आ गई, मींस B Q1 इज नाउ 0। अगर यही 0 यहां पे जाती है तो ये 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मींस दिस फिनोमेनन इज ट्रू, मींस आउटपुट ऑफ द सर्किट Q and Q bar will always be complementary. This means if Q is 0 and Q bar is vice versa, it will never happen Q and Q bar should be equal in this way. ये दोनों आपस में हमेशा वाइसा वर्सा ही रहेंगे, बिकॉज Q and Q bar आल्सो कंप्लीमेंट्री केस, और कंप्लीमेंट्री केस में दोनों वाइसा वर्सा ही होंगे। क्लियर? सो नाउ इस सर्किट की बेसिकली 2 स्टेबल स्टेट है। मान लो 1 स्टेबल स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू, अगर Q की वैल्यू 1 होती है एंड Q बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। दैट शुड बी नोन एज हियर सेट स्टेट। अगर Q की वैल्यू 1 है, Q बार की वैल्यू 0 है, दिस शुड बी नोन एज हियर सेट स्टेट। अगर Q की वैल्यू 0 हो जाती है, इसकी 1 होती है, देन इट शुड बी नोन एज हियर रीसेट स्टेट। ये पॉइंट नोट कर लो बच्चे यहां पे। अगर Q की वैल्यू 1 और Q बार की 0 होती है, दैट इट शुड बी नोन एज सेट स्टेट। अगर Q की वैल्यू 0, Q बार की वैल्यू 1 होती है, दैट शुड बी नोन एज हियर रीसेट स्टेट। Okay, everyone, clear up to this point? Yes, sir. Okay. यहां तक क्लियर हो गया बच्चे? So basically, this is Yes, I have sir. discussing the cross-coupled inverter, and it is also a known as a single bit memory cell. This circuit will be stored as the single bit at a time. ये जो सर्किट मैंने बनाया by using AND gate, this is a circuit by using to storing the one memory cell 1 bit at a time. एक बिट को स्टोर करने के लिए ये सर्किट यूज किया गया है। ओके, क्लियर एवरीवन? सबने ड्रॉ कर लिया ये सर्किट? मैं इसको इरेज करने लगा हूं, नेक्स्ट आगे चलने लगा हूं। नाउ नेक्स्ट है आपका लैच। लैच क्या है बेसिकली? मैं डायग्राम बना दूं पहले। Now, this is should be known as here modified
मेमोरी सेल। पिछला जो सर्किट था दैट इज स्टोरिंग विद द 1 बिट एट ए टाइम। अब इसमें क्या है, द क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर दैट इज अ प्रीवियस डायग्राम आई हैव राइट इन द बोर्ड। ओके, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू बच्चे? हेलो बच्चे, आवाज आ रही है? Okay, okay. Yes, sir. So now the previous, the cross coupled inverter, I have to draw the previous diagram, is the capable of your locking or latching the information, means उस particular एक बिट को लॉक और लैच करने के लिए वो सर्किट यूज किया गया है। Okay, therefore this circuit is also known as your latch। उस सर्किट को हम लैच भी बोलते हैं। क्लियर? सेम सर्किट जो हमने पिछली बार बनाया था, जो इस डायग्राम से पहले, that circuit is also known as latch because that is locking or latching the information for a particular time। उस particular information को सेव करने के लिए यूज किया गया था। क्लियर? इसलिए हम इस सर्किट को लैच भी बोलते हैं। बट द ड्रॉबैक ऑफ द सर्किट इज दैट this circuit is that we cannot enter the desired digital data into it। मींस जैसे हमारी प्रीवियस वाला हमने जो डायग्राम बनाई थी उस पे हमारे पास इनपुट नहीं थी। अब we have the input from the output from the other gate। यहाँ पे क्या हो गया, हमने इस सर्किट को कुछ मॉडिफाइड किया कि this drawback can be overcome by modified this circuit, means this modified allow us to enter the desired digital data into that। पहले डायग्राम थी हमारी दो नैंड को लेके, उस पे हम इनपुट वैल्यू नहीं दे सकते थे बिकॉज जो हमारी इनपुट थी वो उसकी दूसरे की फीडबैक की पहले की इनपुट बन रही थी। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, मैंने 4 गेट डिसाइड किए और 2 नैंड गेट और लगा दिए, दोनों की इनपुट कंबाइन कर दिया और उसको एस और आर डिनोट कर दिया। इससे क्या हुआ, हम एस और आर की इनपुट अपनी मर्जी से डिजायर्ड इनपुट दे सकते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे ना कुछ केस डिस्कस होते हैं। अब ये केस ध्यान से सुनना बच्चे सभी। आवाज आ रही है बच्चे सबको? I am audible to all of you. Listen clearly बच्चे, जहां पे किसको डाउट हो पूछ लो। That is a very important thing। ये चीज समझ आनी बहुत जरूरी है जो अभी आपको समझाने जा रहा हूं। This is a diagram। I am audible to all of you firstly। कोई रिस्पॉन्स कर दे बच्चे, ठीक है तो? Yes, sir. Okay, okay। Now the first case is now if s is equal to 0, r is equal to 0। मैंने सबसे पहला केस लिया because this circuit is modified by the desired input। मैं अपनी मर्जी से भी इनपुट दे सकता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे यहाँ पे 2 इनपुट है तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं। ओके, सबसे पहले मैंने केस लिया when s is equal to 0 और r is equal to 0। ओके, उस केस में मान लो मैंने किया कि s की वैल्यू 0 है और r की वैल्यू भी 0 है, तो मेरी यहाँ पे वैल्यू 1 1 आ जाएगी। देखो आउटपुट ऑफ द गेट नंबर 1 एंड द गेट नंबर 2, किसी भी नैंड गेट की वैल्यू दोनों 0 होगी तो मेरी आउटपुट 1 आ जाएगी बिकॉज़ इट शुड बी एक्ट एज इन्वर्टर। अगर मान लो मेरी दोनों की वैल्यू 1 हो गई है, सो इनिशियली मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरी Q की वैल्यू ना 0 है। आई हैव टू अज्यूम Q इज इक्वल टू 0, ओके, एंड Q बार इज इक्वल टू 1। तो 1 वाली वैल्यू जो 1 है यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है, अज्यूम लेट Q is equal to 0, Q bar is equal to 1। दोनों 1 चले गए, 1 and 1 आउटपुट क्या आएगी? 1 इसकी 1 एक इनपुट इधर चलेगी, यहाँ पे भी 1 आ गई। 1 और 1 इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगी गेट नंबर 3 पे? 1 आएगी सर। 0 सर एंड गेट है। नैंड सभी नैंड गेट है बच्चे, सभी नैंड गेट है। देखो बबल Okay, बनाया sir. हुआ मैंने। ओके सर। मींस ये वैल्यू 1 हो गई, ये भी वैल्यू 1 होगी, तो आउटपुट क्या आ गई? Q की वैल्यू 0 आ गई। ओके, सो नो अगर मैंने यहाँ पे 0 था, यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई, तो इसकी वैल्यू Q की फीडबैक से 0 आ गई। 1 0 की वैल्यू हो गई, आउटपुट क्या आ गई? 1 0 1 आ गई Yes, बिकॉज़ sir. फीडबैक 0। 1 आ गई। मींस इस केस में क्या हुआ, the output there is no change in the state of the output। मैंने अज्यूम किया था Q is equal to 0 और Q bar is equal to 1, तो ये आउटपुट देने के बाद अगर मेरी S की वैल्यू 1 0 और R की वैल्यू 0 रहती है, मेरी आउटपुट फिर क्या आ गई? 0 1 नहीं आई है। तब भी मेरी Yes, sir. मैंने अज्यूम करके आउटपुट फिर 0 और 1 नहीं आई है ना दोबारा। यस सर। Means
there is no change in the state when s is equal to 0 and r is equal to 0. There is no change. Should be known as here no change in the state when s is equal to 0 or r is equal to 0. Now I have discussed on the case 2. When s is equal to 1 and r is equal to 0. अब सभी दोबारा देखो, वन भूल जाओ अभी आप. अब मान लो s इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 0. s की वैल्यू 1 है. मान लो s की वैल्यू यहां पे 1 है, r की वैल्यू 0 होगी. 1 पे वैल्यू इन्वर्टर 0 होगी, इसकी वैल्यू 1 हो गई. 0. यस सर. ठीक है. अगर किसी की वैल्यू 0 आ गई है यहां पे, तो मेरे NAND गेट की आउटपुट क्या आएगी? सर 1 आनी 1 आएगी. बिकॉज एक इनपुट अगर 0 हो गई है तो मेरी आउटपुट हमेशा 1 ही आएगी. मींस यहां पे 1 है और इसकी 1 की आउटपुट 1 रहेगी, तो आउटपुट क्या आ गई यहां पे? 0. मींस Q should be now 1 and Q bar is equal to 0. Means when S is equal to 1, R is equal to 0, Q की वैल्यू 1 हो और Q bar की वैल्यू 0 हो, तो मेरी कौन सी स्टेट होती है? मैंने पीछे लिखवाया था आपको, सेट और रीसेट. Tell. When Q is equal to 1 and Q bar is equal to 0, it should be known as here set state. सेट स्टेट. यस सर. तो यहां तक क्लियर है सबको? किसी को डाउट अप टू दिस एंड? Anyone having the doubt up to this end बच्चे? बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लिप फ्लॉप सारा इसी के बेस पे है आगे. नाउ आई हैव द डिस्कशन केस नंबर 3. When S is equal to 0 and R equal to 1. मान लो S is equal to 0 है और R1 हो गया, तो ये वैल्यू 0 हो गई. यस सर. अगर ये वैल्यू 0 है तो मेरी इसकी 4 गेट की आउटपुट क्या आएगी? 1 हमेशा ही 1 आएगी. मींस अगर ये 0 है, कोई भी इनपुट 0 रहेगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी. 1 और 1 क्या हो गया? आउटपुट शुड रिमेन हियर 0. सो Q 0 और Q बार की वैल्यू 1 आएगी, तो कौन सी स्टेट होगी? रीसेट स्टेट. Clear everyone up to this point? यस सर. Now I have the last case discussion, case 4. When S is equal to 1 and R equal to 1. दोनों की वैल्यू 1 1 है. आउटपुट क्या आएगी? 0 and 0. सर यहाँ पे Q भी 0 होगा तो Q डैश भी 1 होगा और Q भी 1. अगर दोनों की इनपुट 0 जा रही है तो आउटपुट क्या आ जाएगी दोनों की? 1 1. इट इज फिजिबल कि Q की वैल्यू भी 1 हो और Q बार की वैल्यू भी 1 हो? इट इज फिजिबल और नॉट? नो सर. इट इज नॉट ए फिजिबल कि किसी का कंप्लीमेंट करो तो उसकी वैल्यू सेम आ जाए. ऐसा कभी पॉसिबल है? नो सर. No, means in the case of S is equal to 1, R is equal to 1, this is your invalid state. Invalid state or prohibited state. Clear everyone? यस सर. ये चारों के चारों केस बच्चे एक बार देख लो. I have the discussion each and every case with the help of your latch having the desired input by the user. देख लो बच्चे, किसी को यहां तक किसी को डाउट है? ये चारों के चारों केस देख लो बच्चे, किसी को डाउट यहां तक? यही चारों का बेस बना के हमने सारे फ्लिप फ्लॉप डिस्कस कर देने आगे. Anyone having the doubt and the clear with me?
क्लियर है बच्चे सबको? रिस्पॉन्स टू मी बच्चे, क्लियर है तो बताओ। क्लियर सर। तमन्ना, सर कबीर, ये सर क्लियर है। बच्चे ये फ्लिप फ्लॉप का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चारों केस के ऊपर ही सारा फ्लिप फ्लॉप डिस्कशन हो जाने हैं, उसके बाद मेरे को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब देख लो, चारों केस सबको क्लियर है। व्हेन s is equal to 0, r is equal to 0, that is your no change state. S is equal to 1, r is equal to 0, set state. S is equal to 1, r equal to 1, reset state. S is equal to 1, r equal to 1, it should be known as your invalid state or prohibited state. बच्चे क्लियर है सबको? चलो आगे चलते हैं फिर। इस कंडीशन को हम ना s is equal to 1 और r is equal to 1 कंडीशन को रेस कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, रेस कंडीशन मींस व्हेन एनी इनपुट ऑफ द गेट इज नाउ द इनपुट, जो हमारी आउटपुट आ रही है वो इनवैलिड स्टेट आ रही है, इस कंडीशन को हम रेस कंडीशन भी बोलते हैं। आपको ध्यान में रखना ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं आपको। सिमिलरली जैसे ये एंड ऑपरेशन नैंड ऑपरेशन से कर रहे हैं, हमारे सभी लैच और फ्लिप फ्लॉप नॉर गेट से भी बनते हैं। क्लियर एवरीवन? So basically s, when the condition s is equal to r is equal to 1, this is also known as your race condition। चलो इसके बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। नाउ चलो बच्चे नेक्स्ट बताऊं आपको। नाउ अब यहां तक जो हमने डिस्कशन की है दैट इज योर लैच। ये हमने डिस्कशन किया है लैच। अगर I have to apply there an enable signal. This is your S, this is your R input, this is your R dash, this is your S dash, okay? This is your enable with apply your clock signal। यहां पे हम क्लॉक सिग्नल अप्लाई कर देते हैं। तो इसके गेज मैं एक ट्रुथ टेबल बनाता हूं। ट्रुथ टेबल इज नाउ enable E S R Q n plus 1 Q n plus 1 bar and comment। And comment in that
enable is now 0 with 4 1. S is now cross 0 0 0 1. बच्चे बोर्ड विजिबल है सबको नीचे से? विजिबल है ना बच्चे? हेलो Yes sir, visible है. QN bar QN bar 0 1, that is now 0 1 1 0, that is here. This is known NC reset and set. Set or reset होगा. Now that is your truth table of your SR flip flop. अगर मैं किसी गेटेड लैच को, ये ध्यान से बच्चे सुन लो एक बार, किसी भी लैच को अगर मैं कोई क्लॉक सिग्नल इनेबल सिग्नल अप्लाई कर देता हूं, दैट केस वो लैच जो फ्लिप फ्लॉप की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है. मींस यू हैव टू अप्लाई द क्लॉक सिग्नल टू द पर्टिकुलर लैच सिग्नल. ओके, तो उस क्लॉक सिग्नल के ऊपर हमारा सर्किट काम करना शुरू कर देता है. सिमिलरली इसके अकॉर्डिंग अब मैं सारी केस डिस्कस करूंगा, और ये वही ट्रूथ टेबल है जो मैंने पहले 4 केस डिस्कस किए थे आपसे. मींस अगर मेरी इनेबल की वैल्यू 0 होती है, मींस जब मेरी लोअर पल्स जाएगी, तो उस केस में मेरा फ्लिप फ्लॉप कोई वर्क करेगा ही नहीं. मींस 0 आएगी. अगर किसी एंड गेट की वैल्यू मेरी 0 0 है, तो आउटपुट क्या जाएगी यहाँ पे? 1 and 1. 1 and 1 से मैं कोई भी कंडीशन एज्यूम करता हूं. मींस जब मेरी वैल्यू S डैश और R डैश की वैल्यू 1 होगी, मींस when E is equal to 0, the output of the NAND gate 3 will be forced to be 1. वैल्यू 1 हो जाएगी. When R dash and S dash is equal to 1, तब उस केस में क्या होता है बच्चे? एक सेकंड वेट करो बच्चे. नाउ चेक इट आउट बच्चे. अगर ये वैल्यू इनेबल 0 है, मींस पल्स की वैल्यू जब 0 आ रहेगी, दिस इज अ क्लॉक पल्स 1 0 1 0. 0 के केस में ये वैल्यू R डैश और S डैश की वैल्यू 1 1 हो जाएगी. बताओ यस और नो. अगर मेरी इनेबल की वैल्यू लो है, इन दैट केस you have to find out the value of R dash and S dash is equal to 1 1 हो जाएगी, because एक वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या आएगी? नैंड गेट पे इन्वर्टर की तरह काम होगी. दोनों की वैल्यू 1 1 होगी. मान लो Q की वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 और 1 0 1, यहाँ पे 1 वैल्यू चल जाएगी. 1 and 1 is equal to 0. मींस दैट कंडीशन इज सेम एज द प्रीवियस स्टेज. मींस आप सेम वही इनपुट देख लो जैसे मैंने पिछले में R और S की वैल्यू मान लो 0 0 की थी, तो मेरी नो चेंज स्टेट आती है. मगर मींस अगर मेरी एनेबल की वैल्यू 0 रहेगी, S और R की कोई भी वैल्यू रहे, मेरी यहाँ पे आउटपुट 1 आएगी. मैंने एक एग्जांपल ली कि Q की वैल्यू 0 ले ली फॉर एग्जांपल. Q 0 रहा तो ये नैंड गेट पे वैल्यू 0 आ गई. 0. हेलो हेलो बच्चे, आवाज आ रही है मेरी? आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर. हेलो
यस सर आ रही है। ये आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, ओके। नाउ q इक्वल टू 0 से मैंने बात की है। अगर q इक्वल टू 0 मैंने अज्यूम किया तो 0 की वैल्यू मेरी यहां पे चलेगी, तो मेरी आउटपुट क्या वैल्यू आएगी? 1 मींस कंप्लीमेंट्री 1 आ गया। 1 और 1 कंबाइन करके मेरी आउटपुट आ जाएगी 0 मींस मेरी आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अगर इनेबल की वैल्यू 0 पड़ी है। qn प्लस मीन नेक्स्ट स्टेज की वैल्यू भी वही रही जो प्रीवियस स्टेज की मेरी वैल्यू थी। ये देखो ध्यान से इसको एक बार, नेक्स्ट स्टेज पे भी वही वैल्यू रही जो मेरी प्रीवियस स्टेज की वैल्यू थी। अगर अब मैं इनेबल की वैल्यू 1 करता हूं, इनेबल की वैल्यू 1, एस और आर की 0 हो गई, तब भी मेरी कंडीशन वही रहेगी कि मींस इनेबल तो 1 हो गया, एक आउटपुट की 0 की वजह से आउटपुट तो मेरी वैल्यू फिर 1 1 आ गई, तो कंडीशन फिर पहले वाली ही होगी कि आउटपुट 0 आएगी और यहाँ पे आउटपुट 1 आएगी। सेम कंडीशन जो हमने चारों केस पहले डिस्कस किए हैं। फिर इनेबल हाई किया, आउटपुट ली, इनपुट ली 0 और 1, एस की और आर की वैल्यू 0 और 1 ली, 0 और 1 ली, तो मेरी आउटपुट आएगी 0 और 1। दैट शुड बी नोन एज योर रीसेट स्टेट। अगर मैं वैल्यू उसकी पहले इनेबल की 1 और एस और आर की वैल्यू 1 1 ले लेता हूं, तो दैट इज द केस शुड बी नोन एज योर इंटरमीडिएट स्टेट। लास्ट वाली जो स्टेज आएगी दैट इज द इनवैलिड स्टेट, दैट इज द फाइनलाइज्ड ट्रूथ टेबल ऑफ द एसआर फ्लिप फ्लॉप। सिमिलरली वी हैव टू राइट इन योर पीपीटी आल्सो। पीपीटी पे चेक करो बच्चे। अगर 0 0 आएगा, ये एसआर फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू है, वैल्यू होल्ड रहेगी, 0 1 पे मेरी वैल्यू रीसेट हो जाएगी, 1 0 पे क्यू की वैल्यू 1 रहेगी, 1 1 पे डिसअलो, बिकॉज दैट इज नॉट अ डिसअलोइंग, दैट इज अ इनवैलिड स्टेट एट द यूजर एंड। ये वही एसआर फ्लिप फ्लॉप की डायग्राम है। ये जीके बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक हमने एसआर के लिए फ्लिप फ्लॉप ही किया है। इसके बाद मैं आपको एक दो पोल दे रहा हूं, वो सॉल्व करो पहले। ये लो, सर इसका आंसर क्या था? एक मिनट बच्चे बता देता हूँ, सोल्व करने दो सभी को भी। 30 35 पेंडिंग है अभी। सर डन। ओके वेट बच्चे, 15 20 स्टूडेंट्स आर पेंडिंग। थ्योरी क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कर दो बच्चे। इसका ऑप्शन दो। टेन स्टूडेंट्स आर पेंडिंग। कर दो बच्चे जल्दी सॉल्व। ऑप्शन इज बच्चे ए, 4 इनपुट। लास्ट पोल है बच्चे, लास्ट पोल का आंसर बताओ मेरे को।
डन सर। Done, sir. Okay. So बच्चे the answer is now reset. Okay. यस सर। बच्चे सर देख पहले लो, का 4 था ना? पहले का 4 था। यस देख सर। लो यहाँ तक बच्चे किसी को डाउट, अभी तक हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप के किया है। इसकी लास्ट जो बोर्ड पे स्टेज आ रही है दैट इज द 1-1, दैट इज द इंटरमीडिएट स्टेट और रेस कंडीशन और इनवैलिड स्टेट, प्रोहिबिटेड स्टेट ऑफ द व्हेन s is equal to 1 and r is equal to 1। देख लो बच्चे यहाँ तक किसी को डाउट। नेक्स्ट वीक को बच्चे आपका फ्राइडे को ही लेक्चर लगेगा, क्लियर? इसी वीक के था केवल मंडे। ओके यस सर। नेक्स्ट वीक फ्राइडे को ही लगेगा अपने नॉर्मल टाइम पे। ओके सर। यस सर। ठीक है, देख लो आज के लेक्चर में हमने डिकोडर से स्टार्ट किया था। डिकोडर विद योर 7 सेगमेंट डिस्प्ले, नाउ विद योर एनकोडर, प्रायोरिटी एनकोडर, ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सीक्वेंशियल सर्किट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। ये फ्लिप फ्लॉप बच्चे इतना इंपॉर्टेंट है, फ्लिप फ्लॉप से ही हमारा रजिस्टर कनेक्ट है और काउंटर कनेक्ट है। ये एसआर फ्लिप फ्लॉप समझना बहुत जरूरी है। ये आज की डेट में अब आज सब कुछ क्लियर कर लेना। नेक्स्ट वीक तक जब मेरा लेक्चर होगा, अगर कोई डाउट होगा तो हम वहां पे स्टार्टिंग में ये चीज क्लियर कर लेंगे रिलेटेड टू एसआर फ्लिप फ्लॉप, बिकॉज यही फ्लिप फ्लॉप से आगे हमारे सारे काउंटर चलने हैं। जिसको ये नहीं पता लगेगा वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। किसी को भी डाउट है तो कुछ समझ लो, ये पीपीटी जो मैंने अभी बनाई है, जो एसआर फ्लिप फ्लॉप चला है, गूगल से भी सर्च कर लो, सिंपल आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप मिल जाएगा। ये पीपीटी भी मैं चाहे आपको पहले ही शेयर कर दूंगा कि ऐसा फ्लिप फ्लॉप इसमें पढ़ लो आप। देख लो किसी को क्वेश्चन क्यूरी है किसी को पूछ लो बच्चे। क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, बहुत से केसेस हैं इसमें। समझ लग गया बच्चे? डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। No, sir. जल्दी समझ आ गया।
सर सब लीव कर रहे हैं क्या? ओनली 44 रिमेनिंग। बताओ बताओ। चलो ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडे। ओके, ये सब Thank फ्लिप you, sir. फ्लॉप Thank you, यूज sir. कर लेना Thank you, ताकि sir. नेक्स्ट टाइम Thank हमें you, sir. किसी को भी प्रॉब्लम आए फ्लिप फ्लॉप में वो हम अंडरस्टैंड कर लें। क्लियर? Okay, sir. ओके सर। ओके Thank सर, you, sir. थैंक यू। बाकी सेशनल कैसा हुआ सबका? सेशनल अच्छा ठीक हुआ था? सर, बहुत अच्छा हुआ। गुड सर गुड। Great, sir. चलो ठीक है। सर Okay, बच्चे, लंबा thank था you very बट much. हो गया। Thank you, सबसे sir. लंबा इसी का ही था सर।